दुकान पर क्यों गए थे मिस्टर काजी? Mr. Kazi, are you going to turn approver? Mr. Kazi, are you turning to the approver? आपने वो नंबर प्लेट्स की दुकान पर क्यों गए थे मिस्टर काजी? मिस्टर काजी, are you turning to the approver? आपने वो नंबर प्लेट्स की दुकान पर क्यों गए थे मिस्टर काजी? Mr. Kazi, are you going to turn approver? Mr. Kazi, are you turning to the approver? आपने वो नंबर प्लेट्स की दुकान पर क्यों गए थे मिस्टर काजी? Well, a close aide of Sachin Waze has now been confronted by Republic TV. Remember, Riaz Kazi, who's been working with Sachin Waze and was a colleague of Sachin Waze at the CIU of the Mumbai crime branch, has now been confronted by Republic TV. Here is a man who's been appearing before the National Investigation Agency right from the time Sachin Waze has been arrested, considered to be a key aide of Sachin Waze, primarily on the grounds that he perhaps was the person who had got the fake number plates for Sachin Waze. Instructions, rather, were given by Sachin Waze to Riaz Kazi. In fact, he does not respond to the two questions posed by my colleague Alisha Nair outside the National Investigation Agency's office in Mumbai. Important to point out here is that Riaz Kazi has been working very closely with Sachin Waze. Primarily, he has been cooperating with the National Investigation Agency. Also, remember, some serious questions have also been raised about the way Riaz Kazi has also operated on the instructions of Sachin Waze. Fake number plates that were made in Vikhroli area in Mumbai. The allegation that has been leveled against Riaz Kazi is that it is he who got those fake number plates made. And secondly, he's also been caught on a CCTV footage speaking to the owner of that very shop. Allegation has also been leveled against him that he perhaps has destroyed the DVR and has taken the computers from the shop in which those fake number plates were made. These are some serious allegations that have been leveled against Sachin Waze, but there are also reports suggesting that he could turn an approver in this particular case. Question here is that whether he should really be made an approver or not, given the fact that he's worked very closely with Sachin Waze and is considered rather the right-hand man of Riaz Kazi, of Sachin Waze. I beg your pardon. Let me try and go across to my colleague Alisha, who's got us this confrontation with Riaz Kazi. Alisha, कहीं ना कहीं जिस तरह से कई सवाल उठ रहे हैं रियाज काजी को लेकर, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि वो अप्रूवर बन सकते हैं. आपके सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया. देखिए, बिल्कुल शपन, हमने देखा कि किस तरीके से रियाज काजी को लगातार रिपब्लिक की ओर से सवाल पूछे जा रहे थे. इम्पॉर्टेंटली ये सवाल पूछा गया कि क्या वो अप्रूवर बनेंगे, क्योंकि रोज़ाना एनआईए ऑफिस पर आकर वो अपना बयान दर्ज करवा रहे हैं. और जहां तक एक रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि जो खुद रियाज काजी मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कर सकते हैं, लेकिन हालांकि इसके लिए इंतज़ार करना होगा. और इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल हमने उनको किए कि वो उस नंबर प्लेट्स के शॉप पर क्यों गए थे, इसका कोई भी जवाब जो है रियाज काजी की ओर से देता हुआ नहीं नज़र आ रहा है. जो सीसीटीवी रिपब्लिक टीवी की ओर से एक्सक्लूसिवली जो है एक्सेस की गई थी, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ये उसी नंबर प्लेट के दुकान पर गए थे जहां पर फेक नंबर प्लेट्स बनाए गए थे. और यही फेक नंबर जो कि स्कॉर्पियो गाड़ी, वही स्कॉर्पियो गाड़ी जो 25 फरवरी को आंचिलिया की कुछ ही दूरी पर जो रखी गई थी और इसमें से नंबर प्लेट्स भी बरामद किए गए थे. तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये नंबर प्लेट्स उसी विक्रोली के शॉप पर जो है ले गए थे. और उसी के सीसीटीवी पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि रियाज काजी जो कि उसी स्टोर पर जाते हैं, उसी दुकान पर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ के जो मालिक है उनसे बातचीत करने के लिए वो बाहर आते हैं. इतना ही नहीं, ये तक बताया कि वहाँ के जो कंप्यूटर्स के जो डेटाज है वो तक रियाज काजी ने अपने कब्जे में कर लिया था इन्वेस्टिगेशन का नाम लेकर. ये सारे सवाल जो है वो रियाज काजी से आज पूछे गए थे, जहां पर वो एनआईए ऑफिस पर आए थे अपना बयान दर्ज करने के लिए और रोज़ाना यहां पर आ रहे हैं. लेकिन रिपब्लिक टीवी की ओर से जब उनको कन्फ्रंट किया गया, जो सवाल उनको पूछे गए, इन किसी भी सवालों का जवाब जो है वो रियाज काजी ने नहीं दिया है.
अलीशा, ये भी सवाल उठता है कि जिस तरह से रियाज काजी को लगातार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनको बुलाते आ रहे हैं, क्या कुछ पता चल रहा है कि किस तरह से रियाज काजी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, और अब तक क्या जानकारी उन्होंने दिया है? देखिए, रियाज काजी वो शख्स है जो कि सचिन वाजे के राइट हैंड कहलाए जाते थे और इनके सभी और इम्पोर्टेंटली सभी कॉन्स्पिरेसी के दौरान रियाज काजी का भी कहीं ना कहीं मेन रोल ज़रूर है, क्योंकि फिर चाहे वो सीसीटीवी, अगर वो याद है हमें, जहाँ पर जो लेटर मुंबई पुलिस की ओर से ली गई थी, हालांकि वो लेटर मुंबई पुलिस के जो हेड लेटर है उस पर नहीं दिया गया था, एक नॉर्मल लेटर पेपर पर लिख कर दिया गया था और रियाज काजी ने ही लेटर सचिन वाजे के थाने वाले सोसाइटी पर जो है लिख के दी गई थी और कहा गया था कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो 2 DVR है वो 2 DVR मंगवाए गए थे, वो रिसीव भी किया गया था और जो मेन सिस्टम पे जो उसके डेटा थे वो डेटा को खुद रियाज काजी की ओर से डिलीट किया गया है, जो एजेंसी सूत्रों की ओर से बताया जा रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर भी, लेकिन उसी सोसाइटी का DVR हमने देखा कि बांद्रा के मीठी रिवर पर जहां पर NIA की टीम पहुंची थी सचिन वाजे के साथ, वो 2 DVR ले गए थे और वहीं पर NIA सूत्रों की जो जानकारी मिली है कि ये जो 2 DVR है वही CCTV के है, जिसको खुद रियाज काजी ने उस लेटर लिखकर मंगवाया था। और ये DVR के बारे में अगर बात करें, जो कि 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में, जहां वो स्कॉर्पियो गाड़ी सचिन वाजे के बिल्डिंग पर कई बार उसकी मूवमेंट देखे गए थे। तो इन सारे सबूतों को मिटाने में रियाज काजी का सबसे अहम रोल ज़रूर दिखाई दे रहा है। और अब जहां तक ये बताया जा रहा है कि रियाज काजी जो कि शुरुआती से, यानी 14 मार्च से जब से सचिन वाजे अरेस्ट हुए इसके बाद लगातार उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है और सूत्र ये तक बता रहे हैं कि रियाज काजी जो कि काफ़ी करीबी सचिन वाजे के थे और इस सभी कॉन्स्पिरेसी में कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है, लेकिन अब वो सरकारी गवाह बन सकते हैं। Well, thank you very much, Alisha, for getting us the latest key aid of Sachin Waze now being confronted by Republic TV, the only channel to ask some hard questions to Riaz Kazi, who could perhaps become an approver in this case.